the first topic which we are going to discuss today, that is a concept of God in Jainism. Right? Concept of God in Jainism. This is an important topic, right? Concept of God in Jainism. So we are going to discuss this topic today. ये साइज बहुत छोटा तो नहीं लग रहा? छोटा है, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। कर लेते हैं बेटे, कर दो। मैंने आपसे पूछा था, फिर ये दो ही साइज इसमें 14 and 18, right? Concept of God in Jainism, right? So as far as the concept of God in Jainism is concerned, Jainism में जो God का concept है वो वैदिक रिलीजन में God के concept से totally different concept है, though there may be some minor similarities also, right? So let us start discussing this topic today, right? So we can say, first of all, let us consider it that Jainism में हम ये मानते हैं कि this is the universe, right? First of all, I'm starting from this point that this is the universe, right? This is universe. They just make it simple so that you may remember it. Remember the, you can say things, right? It is universe. And you can say in this universe, there are, you can say, a number of substances which exist there in universe, right? Number of substances which can be there in universe, right? And apart from the substances, right, there can be the living beings also in the universe, right? So as far as the living beings concerned, let us take this as a living beings, right? Let us take this as living beings, right? So there are living beings also in the universe, right? So we can say, according to the Jainism, in the universe, there are the living beings, right? These are the living beings, right? These are the living beings in the universe, right? And we can say these are the other substances in the universe. These are the substances in the universe. Living beings and substances are there in the universe. So let us take these substances. Substances, right? So the first starting point in the concept of God in Jain philosophy, that there are certain hypotheses on the basis of which the philosophy depends, right? So every philosophy depends on certain hypotheses, you can see, right? So these are the hypotheses, right? So what are the certain hypotheses? Because it is plural, let me make as here, right? So according to those hypotheses, the first and the fundamental hypothesis in Jain philosophy, that is, we can say the universe and all substances there. The universe and all substances there are, and all substances and entities there. And entities there are, we can say, eternal. Eternal.
इटर्नल मीन्स सदीवी, राइट, पंजाबी में हम इसको सदीवी बोलेंगे, जो कभी जिनका एंड नहीं होता, राइट, सो दोज आर इटर्नल, राइट. And the second hypothesis in their philosophy is that the universe has no beginning or end. कि यूनिवर्स की कहीं कोई बिगनिंग नहीं है और कहीं कोई एंड नहीं है यूनिवर्स की, राइट. सो यूनिवर्स, द नेक्स्ट थिंग इज in this, it has no beginning or end. It means universe we can say runs on its own accord by its own cosmic laws, right? By its own cosmic laws. So इसके अपने नियम हैं, जिस नियम के बेसिस के ऊपर यूनिवर्स काम करता है, यूनिवर्स चल रहा है, राइट. सो and they think that, they suppose that, right, you can say all the, right, they suppose that all the, we can say substances, right, all the substances change or modify, we can say, right, modify their forms, right, continuously, right. So these are the basic, we can say, hypothesis in the Jain philosophy. And apart from that, there is one more hypothesis which I'm telling you, right. That next hypothesis is that, right, nothing can be created or destroyed in the universe. Nothing can be created or destroyed in the universe, right. यूनिवर्स में से ना कुछ कम होता है ना कुछ बढ़ता है, कुछ क्रिएशन और कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं होती यूनिवर्स में, वो जैसा है वैसा ही रहता है, राइट. द नेक्स्ट थिंग इज दैट there is no need of someone, right, there is no need of someone to create or manage, right, to create or manage the affairs of the universe, right. So beta, these are the fundamental assumptions, right. These are the fundamental assumptions, right. So the first fundamental assumption is that eternality, right. All substances and entities in the universe are eternal, सदैवी हैं. The second is universe has no beginning or end. इसका कोई beginning नहीं है, इसका कोई end नहीं है, right. Third is universe runs according to its own cosmic laws. इसके अपने नियम हैं जिसके आधार पर ये काम करता है, right. And fourth is all substances change or modify their form continuously. हर चीज की जो है फॉर्म चेंज होती रहती है, मॉडिफिकेशन होती रहती है. And nothing can be created or destroyed, right. Nothing can be created or destroyed. सिर्फ और सिर्फ उसकी मॉडिफिकेशन होती है, उसकी चेंज होती है, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन नहीं होती, ये जैनिज्म का मानना है, राइट. एंड नेक्स्ट इज देयर इज नो नीड ऑफ समवन, राइट, टू क्रिएट और मैनेज द अफेयर्स ऑफ द यूनिवर्स. यूनिवर्स अपने अकॉर्डिंग चलता है, किसी की जरूरत नहीं है तो कोई इसको मैनेज करे
या किसी ने इसको क्रिएट किया हो, ऐसा कुछ नहीं। ओके, सो दिस इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. So the next important point now here is that therefore, right? Therefore, we can say Jainism does not believe in God as, right? Does not believe in God as what? As creator. ना तो God creator है, right? और as we can say survivor, ना God survivor है, और एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते हैं हम, और डिस्ट्रॉयर, राइट? डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स, राइट? वो कहते कि हमें यूनिवर्स को क्रिएट करने के लिए किसी गॉड की जरूरत नहीं पड़ी, और यूनिवर्स को एडमिनिस्टर करने के लिए किसी गॉड की जरूरत नहीं पड़ी, और इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी गॉड की जरूरत नहीं पड़ी, राइट? And one thing I'm just telling you, right? So beta, as far as the Hindu philosophy is concerned, right? So Hindu philosophy में बेटा हम इनको कहते हैं ब्रह्मा गॉड है जो क्रिएटर है, राइट? हाँ, सो एंड बेटा दूसरा है विष्णु गॉड है, राइट? जो पूरी सृष्टि को चलाता है, रन करता है, एंड थर्ड इज महेश जो डिस्ट्रॉयर है, राइट? सो ये तीन बेटा हमारी हिंदू फिलॉसफी में है, राइट? सो अकॉर्डिंग टू द हिंदू फिलॉसफी दीज आर द थ्री गॉड्स, राइट, which have created or which you can say, right, administer or which destroy the universe, right, according to the Hindu philosophy, right, destroy the lives, so this is in Hindu philosophy, right? So beta, first and foremost difference between the Jain philosophy and the Hindu philosophy is this, right? So Hindu philosophy assumes that there is some force which is known as God, and that force exists, right? That force is the creator of the life on earth, and that force is the administrator of the life on earth, and that force is the destroyer of the life on earth. So this is the first and foremost difference between the Hindu philosophy and the Jain philosophy. Is it okay up to this point? Anything to say? Right? Yes. Yes, sir. It is clear. So beta, today's topic is interesting, right? So please be concentrated, right? And please cooperate. वैसे तो आप cooperate तो हर रोज ही करते हो, आपको तो कहने की जरूरत ही नहीं, right? So now beta, the next question, which is very important question and which comes automatically from the mind, right? Now the question is Jain religion, right? Is Jain religion, right? We can say, is Jain religion atheistic, right? So फिर क्या Jain religion atheistic है, right? अब कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है शायद atheistic का मीनिंग क्लियर ना हो. What is the meaning of atheistic? One who don't believe in God. Yes. Yes, sir. Right. Right. Beta, it means disbeliever or lack of faith in God, right? Atheistic. We can say disbeliever or lack of faith in God, right? वो जो God में faith नहीं करता, disbeliever or have lack of faith in God, उसको हम atheist बोलते हैं, right? So क्या Jain religion atheistic है? अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है, and this question is also an important question in itself, right? So now इसका जो सीधा सीधा आंसर है बेटा,
क्योंकि इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा, मैं आपको दूंगा, राइट। मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राइट, वो मैं आपको दूंगा। सो इसका बेटा आंसर है नो, इट इज रॉन्ग टू से, नो इट इज रॉन्ग टू से दैट we can say Jainism, right? To say that Jainism is we can say an atheistic religion, right? ऐसा नहीं है कि जैनिज्म एक एथियस्टिक रिलीजन है, right? So this is right. So it is true that they don't believe in God as creator, administrator, or destroyer of life, right? It is true that they don't believe in God. It is true that they don't believe in God. They don't believe in God as creator, right? As creator, administrator or destroyer, right? Or destroyer. But you can say, but they believe, but they believe, you can say, right? They take God, ऐसा लिख लेते हैं, they take God as a perfect being, as a perfect being. It means कि one human being, right? Any creature who is perfect, right? So that is termed as a God, right? So this is the concept of God, right? So this is how do they take God, it is, right? So according to them, God is not creator, but, right, it is a perfect being, right? So God is a perfect, right? So this is the main difference between the Hindu philosophy and the Jain philosophy. Is it clear up to this point, right? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. Okay. So now, beta, the next question which now arises, right, automatically from here, that you can say how one can become perfect being, right? How one can become perfect being. आप perfect being कैसे बन सकते हो, right? How one can become a perfect being, right? So according to the Jain philosophy, right, आपको perfect being बनने के लिए, right, you have to destroy all of your karmas, right? So we can say that to be a perfect being, right, to become a perfect being, to become a perfect being, right, one has to destroy, right, all of his or her karmas, right? हमें अपने कर्म हैं जो उनको डिस्ट्रॉय करना होगा, उनको डिस्ट्रॉय करके हम परफेक्ट बीइंग बन सकते हैं, राइट? हम परफेक्ट बीइंग बन सकते हैं, राइट? सो and the next thing is that, right, once the karmas are destroyed, right, once the karmas are destroyed, once the karmas are destroyed, so one becomes
one becomes a liberated soul, right? So one becomes a liberated soul. तो आपकी जो आत्मा है वो मुक्त हो जाती है, राइट? जब आप अपने कर्म है जो जब आप उनको डिस्ट्रॉय कर देते हो, so then one becomes a liberated soul, right? So is it clear? Yes, So sir. ये हो, right? Yes, So sir. मेन फोकस कर्म के ऊपर है, हमें अपने कर्म सुधारने हैं. The next thing is that which is there, right? When so you can say, yeah, after this, right? After this we can say, you can say one goes in a blissful condition, a blissful state, right? Blissful state, right? And achieves moksha, right? Achieves moksha. So these are the two important things here in this philosophy, right? वो कहते हैं कि जब आपने अपने कर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया और जब आपकी सोल लिबरेट हो जाती है, तो फिर आप एक ब्लिसफुल स्टेट में चले जाते हो. ब्लिसफुल स्टेट मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी स्टेट, राइट? ब्लिसफुल स्टेट, extremely happy state, right? Where there is no sorrow, no pain, right? So we can say that blissful state means extremely happy state, because everybody may not be knowing the meaning of the blissful state. So that is why extremely happy state. So that is the blissful state, right? So this is there about this blissful state. And as far as this moksha is concerned, right? Moksha is concerned, you can say liberation from the cycle of birth and death. This is what we mean by moksha, liberation from the cycle of birth and death, जिसे हम मुक्ति अचीव करना कहते हैं, liberation from the cycle of birth and death. So this is called moksha. So blissful state and moksha. यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? Yes, sir. Right. So बेटा, yes, so बेटा अब मैं थोड़ा इसको पिक्टोग्राफी में हम काम करते हैं. यस निशांक? सर इसका मतलब तो सर जैनिज्म के अकॉर्डिंग कोई भी गॉड बन सकता है. यस बेटा, मल्टीपल गॉड्स. यस सर क्योंकि सर हिंदुइज्म में क्या होता है कि सर जब सोल लिबरेट हो जाती है सर साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से, तो सर वो परमात्मा में आत्मा का मिलन होता है. यस 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 बेटा. लेकिन सर तब भी परमात्मा नहीं बन, परमात्मा मतलब खुद भगवान थोड़ी ना बनता है तब भी वो. यस यस यस. नहीं 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 बेटा, हिंदुइज्म में तो ये है ही डिफरेंस है ना. हिंदुइज्म की तो हाँ फिलॉसफी डिफरेंट है ना बेटा. सो बेटा ये बात होगी, राइट? सो बेटा अब मैं यहाँ ये लेता हूँ, राइट? सो ये कोई पर्सन है, राइट? सो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं होती, सो प्लीज डोंट माइंड, राइट, माय ड्राइंग, राइट? क्योंकि ये वैसी ही होती है मेरी ड्राइंग, मैंने तो बस सिर्फ आपको समझाना होता है, दैट इज वाई मैं ये कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, अदरवाइज तो मुझे करना आता ही नहीं है. ठीक है? सो ये हो गया आपका, मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट पूरा, राइट? सो ये हम ले लेते हैं, राइट? सो इस चीज को मैं यहाँ लेता हूँ. जब 80s में निशांक कंप्यूटर नहीं होते थे ना, हमारे पास तो नहीं होते थे, खैर और तो कहीं होते होंगे, ठीक है? तब मैंने ऐसी पिक्टोग्राफी में पूरी एक बुक लिखी थी, कमर्शियल लॉ की. ग्रेट सर, ग्रेट. अभी भी दो आती है सर?
नहीं 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 बेटा, वो तो बस मैंने बस लिखी और मेरे पास ही कहीं रह गई, और उसके बाद मुझे मुझे मिली नहीं। वो तो एक्चुअली पब्लिश नहीं करवा पाए थे ना, लेकिन मैंने उसको मतलब संवाद की फॉर्म में लिखा था पूरा, जो जो लॉ की बुक लिखी थी ना, सो वैसे लिखा था मैंने, राइट। सो बेटा ये होता है, राइट। और उसके बाद बेटा ये कंडीशन होती है, राइट। बेटा ये वैसे ही आंखें थोड़ी सी बड़ी बन गई, ये मत समझना कि जाग जाग के आंखें ऐसी हो जाती है, राइट, किसी की, है ना। वो तो वैसे ही ऐसी बन गई, थोड़ी बड़ी बन गई। सो बस थोड़ा टाइम आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन बन जाती है ना? जरूरी नहीं कि सभी की ऐसी कंडीशन बने, राइट, लेकिन कुछ वैसा हो सकता है, राइट। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये, राइट। एंड बेटा दिस इज, वी कैन से दिस इज ए मैन, राइट, कॉमन, है ना, कॉमन मैन। इसको मैं कॉमन मैन कहता हूँ, दिस इज ए कॉमन मैन, राइट। And this is a perfect being, right? This is a perfect being, we can say, right? This is a perfect being. And ये कब होता है बेटा? This happens, you can say, right, after destroying karma. जब आप अपने कर्म डिस्ट्रॉय कर लेते हो, राइट, आफ्टर डिस्ट्रॉइंग कर्म, राइट। सो दिस इज द after destroying karma. So one becomes like this, right? So we can say, right? So we can say, then this you can say perfect being, right? Is, we can say, is termed as God, right? So this perfect being is termed as God in general, right? So it means आदमी ही भगवान बनता है in general, right? So this is the meaning, right? Is it okay? सर साइकिल ऑफ कर्मा भी अलग हो गई, मतलब यहाँ पे सर कर्मा डिस्ट्रॉय करने पड़ते हैं, और हिंदुइज्म में तो सर ये है कि जितना सत्व बढ़ाते जाओगे उतना ऊपर जाते रहोगे। बेटा we are reaching there, right? We are reaching there, right? Yes, एक बार में सब कुछ बताना मुश्किल है। So, right? So I am clearing everything, right? So बेटा ये बेटा, जब बेटा किसी की ये कंडीशन हो जाती है, जब कोई परफेक्ट बीइंग बन जाता है, राइट, तब बेटा क्या होता है, राइट, आफ्टर बिकमिंग ए परफेक्ट बीइंग, right, we can say a person, right? So yeah, we can say that this is the
This is the right final stage. Right, this is the final stage. Where, right? Where we can say this is the final stage where one is soul becomes liberated. जहां जाके आपकी soul liberate हो जाती है, soul becomes liberated. This is the one point, right? And soul becomes liberated, and we can say man achieves a blissful state. Man achieves a blissful state. Man achieves a blissful state, and is you can say is liberated from the cycle of right, from the cycle of birth and death, right, from the cycle of birth and death. So liberation हो जाती है आपकी birth and death के cycle से, right, जिसको हम मोक्ष कह देते हैं, right? So this is the simple thing. Is it okay up to this point? अब मुझे लगता है शायद आप भूल नहीं पाओगे इसको, है ना, आपको पूरा याद रहेगा. Yes, sir. So okay, I am going to delete it. So the next हेलो yes, सर जर्नलिज्म का फिर ये भी कहने का ना कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ beta your voice is not ਮੈਂ clear. ਸ਼ਾਇਦ Beta your voice is not clear. Please tell me. Hello. ਸਰ ਜर्नलिज्म ਕਹਿਣ ਗਿਆ ਹੈਲੋ ਬਈ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੇ ਆ नहीं beta your voice is not coming. So beta can you type and send it to me, right, if it is possible? ओके सर because voice is not coming, there may be network issue, right? So okay, yes, so now beta such a perfect being, right, such a perfect being possesses, right, such a perfect being possesses, right? So अब क्या होता है उसके पास? possesses number 1 infinite knowledge. अब उसके पास infinite knowledge होती है, right? number 2 infinite vision. उसके पास infinite vision होता है. number 3 infinite power. उसके पास infinite power होती है. and number 4 infinite, right, bliss, happiness, right? So infinite knowledge, infinite vision, infinite power, and infinite happiness, right? So this is okay. So now the next thing is this, right? So we can say this living being is known as God, right? This living being is termed as God, in Jain philosophy, right? In Jain philosophy, this living being is termed as God in Jain philosophy, right? In Jain philosophy, right? So therefore, according to Jainism,
right? According to Jainism, every living being has potential to become God, right? Every living being has potential to become God. So हर किसी में God बनने का potential है, right? So this is a good motivation, I think, to the individuals on this planet. Yes, sir. I think, sir, in other religions it is not so. Yes, yes. So every human being has, every living being has potential to become God. It is right. So next thing is, therefore, therefore, therefore Jainism, right? Therefore, Jainism believes in, right? Therefore, Jainism believes in multiple gods, right? Multiple gods, not in one God theory, right? Not in one God theory, right? जैसे हम कहते हैं एक गॉड है पूरी सृष्टि को बनाने वाला, इनका इनकी फिलॉसफी डिफरेंट है. They believe in multiple gods, right? Not in one single god, right? So यहाँ से हम two important things को निकालते हैं. First important thing which comes from here, that we can say Jain gods, right? For examination, Jain gods can be innumerable, right? Innumerable. So this is the important statement. Jain gods can be innumerable, means multiple gods हो सकते हैं, right? This is the one point. And the second point is, right? And the second important point here is that their number is continuously increasing, right? Continuously increasing, we can say, right? With attainment of, right? With attainment of liberation by more living beings. Attainment of liberation by more living beings, right? जैसे जैसे लोग मोक्ष प्राप्त करते जाते हैं, उनका नंबर बढ़ता जाता है गॉड्स का, right? So ये है. So is it clear up to this point, beta? Anybody if has any doubt, please tell me. Yes, sir, it is clear. Yes, Okay. sir. Okay. So beta, that is why it is important to know every religion, right? Though you are following any religion, right? भले आप हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, लेकिन हर रिलीजन को देखना बहुत जरूरी है, right? So next है according to Jainism, according to Jainism. So there is one important thing here. So according to Jainism, karmas are, right? Karmas are attached to the soul, right? Karmas are attached to the soul. So हमारी soul के साथ कर्म attach हो चुके हैं, हुए रहते हैं, right? And the main purpose of a religion, is to liberate the soul, from karmas, right? So religion का main purpose ये है कि कर्मस से soul को liberate करवाना है religion, right? So let me explain it in a simple way, right? So one is this side, let us take it, right? So
I can say that this is one state, right? And this is, I can say, the other state. So these are the two different states. So I can take this as a soul, right? This is a soul. So now here, as far as this point is concerned, right? So according to the Jain philosophy, you can say, right? So our soul, right? Our soul, you can say, is you can say engulfed in, right? So our soul is, we can say, right, attached with so many karmas. Our soul is attached with so many karmas around it, right? So many karmas, right? And by following the religion, what you need to do, you have to, right, destroy these karmas, right? You have to destroy these karmas, right? So यहाँ पे हमने बेटा क्या लिया है? This particular thing is soul, right? इसको मैंने एक soul लिया है, right? Soul लिया है, and जो मैंने ये लिया है, इसको मैंने क्या लिया है? कर्म लिया है, right? So this is, we can say, कर्म, so that आपको ये समझ आ जाए, right? And जो मैंने यहाँ ये लिया है बेटा, this thing, it means destruction of karmas, right? Destruction of karmas, destruction of karmas, right? So ये हमारी फिर, ये हमारी जो एंटायर फिगर जो हमारी बनती है, राइट? अगर इस फिगर को हम एंटायरली लेते हैं, ये हमारी फिगर क्या है? दिस इज सोल, राइट, अटैच्ड टू कर्म्स. सो ये हमारी फिगर क्या है? दिस इज सोल अटैच्ड टू कर्म्स, राइट? सोल अटैच्ड टू कर्म्स, right? Soul attached to karmas. So this is the important thing here, right? Soul attached to karmas, right? And then beta, you can say, then we can say that here comes the religion, right? Then here comes the religion. फिर यहाँ पे ये religion आता है, right? Religion आता है, and जब यहाँ religion आता है बेटा, तो फिर religion क्या बेटा करता है, right? So religion, we can say, gets the soul, right, liberated from. अब क्या हो गया? ये क्या है? This becomes the liberated soul, right? Liberated soul, we can say, free from karmas, right? So फिर religion आता है, वो आपकी सोल को कर्म से मुक्त करता है, राइट? और जब आपकी सोल कर्म से मुक्त हो जाती है, राइट, सो देन you became the perfect being, right? So once the soul is liberated from the karmas, so this is the soul of a perfect being, right? So we can say, इसको मैं हटा देता हूँ, right? So this becomes the soul of a perfect being, right? So ये एक perfect being की soul है, right? Perfect soul, we can say, right? Perfect soul है, इसको वैसे लिखते हैं, soul of a perfect being, right? Perfect being with no karma attachment, right? With no karma attached, we can say. So ये बनी, right? So we can say, so this is the, right? So beta, this is the, we can say, right? This is the ultimate aim of every religion. This is the ultimate aim of religion according to Jainism. Different philosophies हैं, so हम ये नहीं कह सकते
religion. So this is the ultimate aim of religion. So this is the Jain philosophy about the religion. Is it clear up to this point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So अब तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल बात है. यस सर. सर हाँ जी. बहुत सारे हाँ? सिमिलरिटीज हैं, yet differences are there. यस यस यस. सो इससे पहले ये पढ़ रखा था किसी ने कैसे होता है जैनिज्म? नहीं सर, मुझे सर ब्राह्मणिज्म का पता है. ओके 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 राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बेटा कंपैरिजन में, बुद्धिज्म के, जैनिज्म के, हिंदुइज्म वर्सेस जैनिज्म, जैनिज्म वर्सेस बुद्धिज्म, बुद्धिज्म वर्सेस हिंदुइज्म, क्योंकि हमें यहाँ तक तो हमें मालूम होना चाहिए, राइट? सो नाउ बेटा we have talked that in Jain religion, in Jain philosophy, right, there are two important things. One thing is that soul hai, right? One thing is soul hai, right? And the second thing according to this philosophy, that is the karmas attached with the soul, right? Karmas attached with the soul, right? और जब ये कर्म हमने सोल से डिटैच कर दिए, राइट, तब हम परफेक्ट सोल बन गए और तब हमें मुक्ति मिलती है, राइट, लिबरेशन होती है. ओके, इज इट ओके? सो दिस इज राइट. सो बेटा नाउ Yes, sir. राइट. सो नाउ बेटा लेट अस कम ऑन द कर्मस, राइट. मैं सो दैट आपको ये फिलॉसफी समझ आ जाए अच्छे से, मैं तभी आपको बेटा कर्मस की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज जरूरी नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, राइट, कर्मस. क्योंकि अदरवाइज बेटा आप अगर इस पे क्वेश्चन लिखोगे ना, सो वो आप अधूरा क्वेश्चन लिख पाओगे, राइट. क्योंकि बेटा इसमें बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकता है, राइट. प्रूव दैट, राइट, प्रूव दैट जैनिज्म, राइट, जैनिज्म इज ए ट्रांस एथिक, राइट, ट्रांस एथिक रिलीजन, right, we can see, prove that, right, Jainism is a, we can see, trans ethicity, right, TISTIC, right, ethicity religion, right. So जागे trans ethicity religion, sorry, transtheistic religion. So बेटा ये आपका यहाँ क्वेश्चन निकलता है. So as far as this transtheistic religion is concerned, कि ये एक ऐसा रिलीजन है जिसको हम पूरी तरह से हम राइट एथिसेटिक भी नहीं कह सकते, जिसको हम थीसेटिक भी नहीं कह सकते, राइट. इसमें दोनों पार्ट शामिल हैं, राइट. एक और से हमें लगता है कि ये एक एथिसेटिक रिलीजन है जब ये रिजेक्ट करता है कि कोई आउटसाइड फोर्स नहीं है लाइक गॉड, जो क्रिएट करती है, जो सुपरवाइज करती है और जो डायरेक्ट करती है और जो डिस्ट्रॉय करती है, ऐसी कोई आउटसाइड फोर्स नहीं है. तो इसको ऐसे लगता है देखने को ये एक राइट एथिसेटिक रिलीजन है. इज इट क्लियर बेटा? राइट. और दूसरी तरफ हाँ जी सर. और दूसरी तरफ बेटा जैनिज्म एक ऐसा इज्म है जिसने कंप्लीटली गॉड के कंसेप्ट को रिजेक्ट भी नहीं किया है, राइट. सो इनका गॉड का जो कंसेप्ट है दैट इज दैट एवरी लिविंग बीइंग कैन टर्न इनटू गॉड बाय फॉलोइंग ए सर्टेन पाथ व्हिच देयर फिलॉसफी हैज गाइडेड अस, राइट. कि अगर उनकी फिलॉसफी में गाइड किया हुआ पाथ हम फॉलो करते हैं तो हम ही मीन्स कोई भी पर्सन है जो वो गॉड बन सकता है. सो ये कोई भी इंडिविजुअल गॉड बन सकता है, ये उनकी फिलॉसफी है, राइट. सो इट मीन्स ये दोनों के बॉर्डर पे है, राइट. गॉड को मानता भी है और गॉड को मानता भी नहीं, समझे. सो इसलिए बेटा ये क्वेश्चन बनता है, राइट. ट्रांसथीसेटिक रिलीजन है,
राइट। सो इसके ऊपर बेटा आपने जरूर लिखना प्लीज, राइट, कि प्रूव दैट जैनिज्म इज ए ट्रांसथेसिक रिलीजन। ठीक है, मेरी सभी को आपको सुजेशन है कि इसके ऊपर सबने ट्राई करना है, राइट। दिस इज एन Okay, sir. इम्पोर्टेंट, यस, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कर्मास, राइट। कर्मास मैं आपको इसीलिए टीच कर रहा हूँ सो दैट आपको ये पता चल जाए कि कैसे जैन फिलोसफी मूव करती है, राइट, इस डायरेक्शन में, राइट। सो वी कैन से देयर आर many types of karmas, right, there are many types of karmas. So बहुत सारी किस्म के कर्म हो सकते हैं, right, karma, right. So but here these have been classified into 8 broad categories, right. So we are classifying it into 8 broad categories. Here these are classified into 8 broad categories. 8 broad categories, right? So now, as far as those 8 broad categories are concerned, right? So one is, that is the, we can say, right, Mohaniya karma, right? Mohaniya karma. This is the one, right? Mohaniya karma, right? So मोहनिया कर्म क्या होता है बेटा? ये हमारा वो कर्म है that we can say generates, right, we can say a delusion in soul, right, delusion in soul, right, जो हमारी सोल में delusion क्रिएट करते हैं. delusion होता है भ्रम, right, भ्रम, right. So we can say something which is your belief, though the proofs are contrary to that, right. जैसे हमें नजर आता है कि हमने किसी ने आज तक आदमी को डेथ के बाद कहीं जाता नहीं देखा, राइट, हमने किसी ने नरक स्वर्ग नहीं देखी, लेकिन ये एक बहुत हमारा एक पक्का बिलीफ है कि आदमी डेथ के बाद कहीं जाता है. दैट इज वाई जब हम किसी पर्सन की जो फाइनल जब हम उसके रिचुअल्स करते हैं तो हम बहुत सारा कुछ उस समय में दान पुण्य करते हैं. उसकी वजह यही है कि जो हम दान पुण्य करेंगे इसको अगले जन्म में जाकर के काम आएगा, राइट. और हम इस दुनिया में हम हमेशा अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं. हम अच्छा बन के रहने की हम कोशिश करते हैं सो दैट इस लाइफ के बाद जो नेक्स्ट लाइफ है वो लाइफ हमारी अच्छी रहे. सो ना तो किसी ने नेक्स्ट लाइफ देखी है, ना किसी ने नरक स्वर्ग देखा है, ना किसी के पास ब्रह्मा जी का एड्रेस है, ना किसी के पास विष्णु जी का एड्रेस है, ना किसी के पास महेश जी का एड्रेस है, राइट. और ना ही हमने वहां कोई गाड़ी मोटर जाती देखी है आज तक जो लेके जाती है इंसानों को, लेकिन फिर भी हम मानते हैं, राइट. सो ऑल द प्रूफ्स आर देयर दैट हमें कुछ भी नसीब नहीं आता, लेकिन फिर भी हम मानते हैं, राइट. सो इस चीज को हम डेल्यूजन बोलते हैं, राइट. मेरा मतलब ये नहीं है कि ये डेल्यूजन गलत है, हर किसी का अपना फेथ है, राइट. मेरा अपना फेथ हो सकता है, आपका अपना फेथ हो सकता है, राइट. हर रिलीजन का अपना अपना फेथ है. सो वो कुछ उनमें ऐसी बातें हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हम उनको मानते हैं, राइट. दो प्रूफ्स उसके कॉन्ट्रेरी हो फिर भी हम उसको मानते हैं. सो उस चीज को हम डेल्यूजन बोलते हैं. इज इट क्लियर बेटा कि व्हाट इज डेल्यूजन, राइट. Yes, sir. Yes, sir. Generates delusion in soul, and we can say soul in its, Yes, sir. right, soul in its own true nature
इन इट्स ओन ट्रू नेचर, जिससे क्या है कि सोल की जो अपनी ट्रू नेचर है वो पॉल्यूट हो जाती है जब बहुत सारी डिल्यूशन हम ऐड कर देते हैं, राइट, ट्रू नेचर, राइट, एंड मेक्स इट आइडेंटिटी, एंड मेक्स it we can say identity with other, right, with other external substances. अब क्या हो गया, सोल को किसी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं थी, सोल तो अपने आप ही एक आइडेंटिटी है, राइट, लेकिन क्या है कि हमने यू कैन से एक डेल्यूजन जनरेट करके, राइट, सोल में हमने सोल को एक्सटर्नल सब्सटेंसेस के साथ लिंक कर दिया है। अब सोल की जो आइडेंटिटी है वो एक्सटर्नल सब्सटेंसेस के साथ हमने जोड़ दी है। सो दिस इज द मोहनिया कर्म, राइट, सो दिस इज वन थिंग। इज इट क्लियर ना? सर ओके, सो नेक्स्ट इज बेटा ज्ञान, राइट, ज्ञान वर्णीय कर्म, ज्ञान वर्णीय कर्म। So according to this beta Gyan Varniya Karma, you can say it covers the soul's power. It covers the soul's power, right? Soul's power, we can say, of a perfect knowledge. ये आपकी सोल को परफेक्ट नॉलेज प्राप्त करने से रोकता है, वो सभी चीजें जो आपकी सोल को परफेक्ट नॉलेज प्राप्त करने से रोकती हैं। Is it okay? So the next thing is beta, that is we can say darshan, D-A-R-S-H-N-E, darshan varaniya, right, darshan varaniya karam, right, darshan varaniya karam. So beta ये क्या करते हैं, covers the we can say soul's power of, covers the soul's power of a perfect being, covers the soul's power of perfect being, right, perfect vision, sorry, soul's power of perfect vision, darshan means vision. So ये आपको उससे रोकते हैं। And the fourth important is the fourth karma is, you can say, that is we can say, right, antariya karma, A-N-A, right, T-R-A-Y-A, antariya karma, right. So as far as this antariya karma is concerned, right, this obstructs the natural quality of soul, obstructs the natural quality of soul, right, natural quality of soul और एनर्जी ऑफ सोल। ये आपकी सोल को एनर्जी या इसकी जो नेचुरल क्वालिटी है, राइट, नेचुरल क्वालिटी और एनर्जी ऑफ सोल ऐसे लिख देते हैं, एनर्जी ऑफ सोल, ये उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, क्योंकि ना हमने अपनी सोल को यहाँ इतना पॉल्यूट कर लिया है, बहुत सारे डर हैं, बहुत सारे भरम हैं हमारे अंदर। सो दैट इज वाई हमारी सोल की जो ओरिजिनल क्वालिटी थी वो नहीं रही, और हमारी सोल की जो एनर्जी है वो बहुत सारी चीजों में यू कैन से इन्वॉल्व होके, इंटेंगल होके, वो हमारी एनर्जी भी कम हो गई है सोल की। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट, ओके। सो वी कैन से इट प्रिवेंट्स दिस आपका जो फोर्थ कर्मा है, राइट, सो वी कैन से इट प्रिवेंट्स, right, it prevents soul from being liberated, it prevents soul from being liberated, ये सोल को लिबरेट नहीं होने देती, it prevents soul from being liberated, right, from being liberated, right, and it also prevents a living being, and it also prevents a living being, right, living being we can see from something, right, from doing something, from we can say doing something good and enjoyable, doing something good and enjoyable, right,
गुड एंड एंजॉयबल। ओके, सो बहुत सारी चीजें ऐसे हमारे माइंड में रहती हैं। सो हमें पता है कि दिस इज गुड, बट हम बहुत सारी मजबूरियों की वजह से नहीं करते। ऐसा होता है ना हमारे साथ। सो दिस इज द मेन थिंग, राइट? सो these are the 4 karmas so far I have discussed with you. Is it clear, beta? सर Okay, sir. Yes, okay, sir. okay, Sir, okay, please don't rub this left okay. part, left one. Low, Yes, low. sir, left one only. Noted, noted. Thank you, sir. So now, beta, now the next thing is, so beta, so far we have discussed the, you can see, 4 karmas, right? Let me write here. So far we have discussed 4 karmas, right? Sorry, karmas. Right, so out of the 8 karmas, so far we have discussed how many karmas? 4 karma अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, राइट? टोटल कितने होते हैं बेटा? 8, राइट? सो 8 में से अभी तक हमने कितने डिस्कस किए हैं? वी हैव डिस्कस्ड 4, राइट? सो लेट मी राइट इट हियर. सो फार वी हैव डिस्कस्ड 4, राइट? एंड इट इज इंपॉर्टेंट बेटा, मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ कि these 4 कर्म्स are related with the soul. ये जो 4 कर्म है ये सोल को लिबरेट करने के लिए, सोल की प्योरिटी के लिए, राइट? सो these are related with soul, राइट? सो ये है. सो नेक्स्ट इज बेटा, the next कर्म is, you can say, that is the वेदनीय, VEDNIA, राइट? NIYA भी लिख लेते हैं, वेदनीय कर्म, right? This is the 5th karma. So as far as this 5th karma, Vedaniya karma is concerned, Vedan means Pida, right? So this obstructs, right? Obstructs the blissful nature of soul, right? Blissful nature of soul, right? And thereby produces of soul, and thereby produces right? Thereby produces what? Thereby produces pain, right? Displeasure and pain. Thereby produces displeasure and pain. So बेटा, ऐसा सबने एक्सपीरियंस किया है जिस दिन आपका मन खुश ना हो, जो मन में चाहा था वो नहीं मिला उस दिन, तो क्या होता है बेटा? अनकंफर्टेबल रहते हैं, है ना? रात को रेस्टलेस रहते हैं, राइट? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, सर में दर्द होता है ना? तो ऐसा कुछ शायद सबने एक्सपीरियंस किया होगा, है ना? सो वो बेटा सब चीजें, है ना? Yes. सो हाँ, सो वो है. द 6th important thing is बेटा, that is we can say the नामकरण, right? नामकरण. So as far as this नामकरण is concerned, it we can say, right, produce the body with its limitations, right? It, you can say, produces the body, yeah, produces limitations, right? Limitations on the body, right? Produces limitations on the body, right? Its qualities, right? On the body, its qualities and faculties, right? So ये चीज होती है. So इससे क्या होता है बेटा कि जब आपको नाम मिलता है तो नाम के पीछे फिर आपकी बहुत सारी लिमिटेशंस पड़ जाती है, राइट? नाम के पीछे बहुत सारी लिमिटेशंस बन जाती हैं. जैसे बेटा अभी मैं टीचर हूँ, मेरा एक नाम है कि मैं टीचर हूँ, राइट? आप सब लोग मेरी इज्जत करते हैं, है ना? सो बेटा मेरे लिए ये एक लिमिटेशन है
कि जैसे आम कलाकार गाना गाते हैं वैसे मैं गाना गा के यूट्यूब पे नहीं पा सकता, क्योंकि आप बोलेंगे कि सर ऐसे गाना गाते हैं। ठीक है, ठीक है, बल्कि भले मेरा मन करता हो वैसा करने के लिए, है ना। Yes, sir. Bondage देता है सर नाम. यस यस यू कांट बी सिद्धू मूसे वाला। यस यस यस, दैट इज देयर, है ना। सो वही बात मैं कहने लगा था। ठीक है, सो बेटा दिस इज देयर, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज बेटा दैट इज वी कैन से गोत्रकरण, right? Gotrakaram. So as far as the Gotrakaram is concerned, right? It we can say, sorry, obscures लिखना है, obstructs कर दिया मैंने, obscures. So it we can say obscures, right? Obscures the soul's characteristic of, the soul's characteristic of, right? The soul's characteristic of we can say equanimity. Equanimity, right? Equanimity and determines the देखो बेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है गोत्रकरण में कि हमारी जो बेटा सोल है ये किसी वर्ण के साथ एसोसिएटेड नहीं है। सोल का तो कोई वर्ण नहीं है। इज इट क्लियर, है ना। सोल का बेटा गोत्र नहीं है कोई, सोल की बेटा कास्ट नहीं है कोई, राइट। सोल का बेटा कलर नहीं है कोई। सो बेटा ये जो गोत्रकरण है ना, ये हमारी एक हमें पेन देता है, राइट, लाइफ में। और हम कास्ट की वजह से हम आज कितने डिस्प्यूट देख रहे हैं दुनिया में, राइट, कास्ट कलर क्रीड इन चीजों की वजह से। सो वी कैन से सो दिस गिव्स अस कास्ट वन थिंग, राइट, जो गोत्रकरण है। और दूसरी चीज है यू कैन से, राइट, सो दिस गिव्स अस वी कैन से फैमिली, गोत्रा की वजह से, राइट, हम ऐसे जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं हम, राइट। सो दिस गिव्स अस फैमिली एंड द नेक्स्ट थिंग इज बेटा दिस गिव्स अस सोशल स्टैंडिंग, राइट, सोशल स्टैंडिंग देता है ये हमें, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज बेटा दिस गिव्स अस ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, राइट, दिस गिव्स अस ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। सो बेटा ये सब चीजें हमें ये कर्म देता है जिसको हम गोत्र कर्म कहते हैं, राइट। सो दिस गिव्स अस अ पर्टिकुलर पर्सनैलिटी। सो इज इट ओके, राइट। सो बेटा ये भी हमारी सोल को पल्यूट करता है और उन चीजों से हमें पेन होती है, राइट। एंड नेक्स्ट बेटा द एट्थ कर्म which is there, the eighth karma is beta, I am writing here, right. The eighth karma is we can say that is the ayu karma, right, ayu karma, right. So beta जी जैन फिलोसफी ये कहती है, राइट, कि आप यू कैन से आप किसी सोल का आप टाइम ऑफ डेथ आप कैसे डिटरमिन कर सकते हो, राइट। सोल तो एक इटर्नल एग्जिस्टेंस है जिसने कभी खत्म नहीं, लेकिन आप क्या करते हो, ठीक है, आज आप बुक्स उठा के देख लो तो वो कहती है कि इंडिया में रहने वाले लोग एवरेज 65 ईयर्स तक जी सकते हैं। इट मीन्स आज जिस बच्चे का जन्म हुआ है हमने उसकी मैक्सिमम एज आज तय कर दी है कि 65 ईयर्स है, राइट। ये कहते हैं कि दिस थिंग, राइट, ऑब्स्ट्रक्ट्स द सोल फ्रॉम, राइट, ऑब्स्ट्रक्ट्स द वी कैन से सोल्स नेचर ऑफ we can say, right, eternal existence. So this is we can say this karma determines the we can say span of life, right, span of life, right, on our birth,
राइट। जब हमने जन्म लिया, ये हमारा स्पैन ऑफ लाइफ डिटरमिन कर देता है कि आपका इतना स्पैन ऑफ लाइफ है, राइट। सो हम सभी को मालूम है अप्रोक्सीमेटली, राइट। सो दिस इज सो बेटा वो कहते हैं कि इससे क्या होता है, राइट। इट वी कैन से, राइट, इट वी कैन से obscures, right, this obscures soul's nature of, right, this obscures soul's nature of eternal we can say existence, right। soul तो eternal है, इसने तो कभी खत्म नहीं, तो आप लेकिन इसकी एक आयु सीमा निर्धारित कर देते, राइट, अपने तौर पे ही। सो ये भी इन्होंने कहा है, ये आपका 8th कर्म है, राइट। 8th। इज इट क्लियर बेटा अप टू दिस पॉइंट? यस सर। ओके Yes, sir. ओके। सो बेटा नाउ बेटा अब सो अब तक बेटा हमने फिर यहाँ कर लिया है, राइट। सो इनमें से हमने ये जो 4 कर्म है जो हमने किए थे कि दे आर रिलेटेड विद द सोल, राइट। और बेटा जो बाकी बेटा 4 कर्म है वो हमें बॉडीली पे देते हैं, राइट। सो दीज 4 कर्म्स आर यू कैन से, राइट। सो दीज 4 कर्म्स आर रिलेटेड विद द, so these 4 कर्म्स are related with, we can say, the body, right। these are related with the physical body, ठीक है। ये 4 कर्म फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है, पिछले 4 कर्म। इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट, राइट। अब तक हमने ये कर लिया कि 8 कर्म से उनको हमने 4+4 में डिवाइड कर लिया है, राइट। सो अब मैं यहाँ फिर थोड़ा मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको आगे बताना है। 8 कर्म से 8 को हमने बेटा कैसे डिवाइड कर लिया है, 4+4 में, राइट। सो फर्स्ट 4, राइट, यहाँ लिखता हूँ, और यहाँ बेटा मैं लिखता हूँ लास्ट 4, राइट, लास्ट 4 का। सो बेटा ये जो फर्स्ट 4 कर्म है, राइट, फर्स्ट 4 कर्म है, दीज आर नोन एज द, राइट, घाती कर्म एंड घाती कर्म, सॉरी। एंड ये जो बेटा ये जो लास्ट 4 है, राइट, इनको हम बोलते हैं अघाती कर्म, राइट, अघाती, AGHAT, अघाती कर्म। तो ये हमारे घाती एंड वी कैन से अघाती कर्म हम जाते हैं, आगे की कैटेगरीज बन जाते हैं, राइट। सो ये जो फर्स्ट जो 4 कर्म्स हैं, these 4 कर्म्स obscures the natural quality of soul, right, obscure the natural quality of soul। ये हमारी सोल की नेचुरल क्वालिटी को अफेक्ट करती है, राइट, जो फर्स्ट 4 कर्म है। और जो लास्ट 4 कर्म है, राइट, ये क्या करते हैं, these affect the, we can say, right, you can say physical body, right, these affect the physical body, these affect the physical body, right, where soul resides, right। ये उस फिजिकल बॉडी को अफेक्ट करते हैं जहां हमारी सोल रिसाइड करती है, जिस बॉडी की, राइट, फिजिकल बॉडी ऑफ द सोल वी कैन से, राइट, ओके। सो अब बेटा, राइट, अब जा करके उन्होंने बेटा फर्दर इसको बेटा क्लियर किया है कि ऑन हिज, राइट, ऑन हिज या ऑन स्पिरिचुअल पाथ, अपने स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर, राइट, ऑन स्पिरिचुअल पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल, लेट अस राइट, राइट, और ए लिविंग बीइंग भी लिख सकते हैं, ऑन स्पिरिचुअल पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट, ऑफ एन इंडिविजुअल वी कैन से, फर्स्ट कर्म,
right? First, the first four, right? The first four means घाती कर्म, जो है घाती कर्म are destroyed. So आपका पहला काम ये है, पहले आपने अपनी सोल की प्यूरिफिकेशन करनी है. जो 4 घाती कर्म है, पहले आपने उनको डिस्ट्रॉय करना है, राइट? डिस्ट्रॉयड, राइट? And at this stage one attains, right? Attains, we can say, right? केवल, right? केवल, we can say ज्ञान, right? यहाँ तक बेटा आपको सिर्फ ज्ञान मिला है, right? केवल ज्ञान, right? And such a person, right? यहाँ तक आपको बेटा क्या मिला है? केवल ज्ञान मिला है, right? And such a person is known as, such a person, right? Or such an individual, we can say, right? Comes to be known as, we can say, right? Arihant. So such a person comes to be known as Arihant, right? So Arihant is one who has destroyed the first 4 karmas of, right? First 4 karmas of his life, and that means that person has purified his soul according to the Jain philosophy. Is it clear up to this point? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So अब बेटा क्या है? So आपकी बेटा पहली स्टेज हो गई, राइट? आपकी बेटा पहली स्टेज हो गई. मैं यहाँ ये लिखता हूँ बेटा, राइट? आपकी पहली स्टेज हो गई बेटा. सबसे पहले आप क्या हो? आप एक कॉमन ह्यूमन बीइंग हो, कॉमन मैन, राइट? कॉमन मैन हो के, राइट? आपने बेटा क्या किया? आपने बेटा जो 4 कर्म्स हैं, आपने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, राइट? सो क्या किया आपने? डिस्ट्रॉयड फर्स्ट 4 कर्म्स, राइट? फर्स्ट 4 कर्म, राइट? सो जब आपने बेटा अपने फर्स्ट 4 कर्म्स डिस्ट्रॉय किए, राइट? यू डिस्ट्रॉयड योर फर्स्ट 4 कर्म. सो जब आप अपने फर्स्ट 4 कर्म डिस्ट्रॉय कर लेते हो, तो एट दैट स्टेज बेटा, राइट? यू कम एट दिस स्टेज, लेट्स सपोज एट दिस स्टेज बेटा यू बिकम अरिहंत, राइट? सो ये आपकी वो स्टेज है जहां आपने एक स्टेटस, राइट? एक नेम जो आपको मिला, जो आपको पदवी मिली, तो वो आपको अरिहंत की पदवी मिलती है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, राइट? यू बिकम अरिहंत. इज इट ओके बेटा अप टू दिस पॉइंट, राइट? सो आप बेटा अरिहंत बन गए. अब तक फर्स्ट 4 कर्मा को आपने डिस्ट्रॉय किया. सो नाउ बेटा, नाउ द नेक्स्ट, राइट? नाउ द नेक्स्ट जॉब इज बेटा, that is next on the way, or next on the spiritual path, right? Next on the spiritual path, beta. One destroys, right? Destroys the last 4, right? Last 4 karma, that is, we can say, aghati karma, अघाती कर्म. फिर आपने उनको डिस्ट्रॉय करना है, राइट? एंड ही अटेन्स, राइट? एंड ही अटेन्स, वी कैन से, टोटल, राइट? एंड ही अटेन्स टोटल लिबरेशन, और उसने टोटल लिबरेशन अटेन कर ली है. एंड is come to be, and has come to be
and is known as, ऐसे लिख देते हैं, and is known as सिद्ध। फिर हम उसको सिद्ध बोलते हैं, राइट। सो बेटा फिर यहाँ क्या होगा बेटा, फिर आपने पहले आपने फर्स्ट 4 कर्म डिस्ट्रॉय किए, राइट। सो अब आप बेटा फिर आपने यू कैन से डिस्ट्रॉयड, वी कैन से, राइट, लास्ट 4 कर्म। फिर आपने अपने बेटा जो लास्ट 4 कर्म है फिर आपने उनको डिस्ट्रॉय किया, राइट। और जब आपने अपने लास्ट 4 कर्म्स को डिस्ट्रॉय कर दिया बेटा, सो लास्ट 4 कर्म को डिस्ट्रॉय करने के बाद बेटा यू बिकेम सिद्ध, राइट। सो हियर इज योर लेवल सिद्ध, सो यू कम टू बी नोन एज सिद्ध। सो ये आपका बेटा सिद्ध का लेवल होता है, राइट। सो इट मीन्स स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर आपकी ये स्टेज आती है। एक स्टेज आपकी अरिहंत की स्टेज आएगी पहली, दूसरी स्टेज आपकी सिद्ध की स्टेज आएगी, राइट। और जब आप सिद्ध हो जाते हो, राइट, फिर आप बेटा एक वो जो परफेक्ट जो स्टेज है आप वो अचीव करते हो। एंड आफ्टर अचीविंग दैट यू कैन से परफेक्ट स्टेज, देन योर सोल becomes liberated from the cycle of life and death, birth and death, right? So then your soul becomes liberated from the cycle of birth and death. फिर आपकी जो बेटा सोल है वो फिर आप लिबरेट हो जाती है आपकी, और फिर वो जो मोक्ष जिसको कहते हैं फिर वो मिलता है, राइट। सो पहले अंदर की सोल, फिर बॉडी, और उसके बाद फिर सिद्धि अचीव होती है, राइट। सो इज इट क्लियर बेटा, right? So Mahavira became Siddha at the age of 72, right? At the age of 42, right? वो अभी तक बेटा अरिहंत बने थे। At the age of 72, जब उसने अपनी सोल को मुक्त कर लिया बॉडी से, right? So डिटैच कर लिया, right? तो फिर वो सिद्ध बने, ओके। सो दिस इज, उस स्टेज को बेटा हम सिद्धि बोलते हैं। यस सर। Okay, so that is there. So this is very logical, you can say, thing, right, in their philosophy, and it's quite interesting also. सर आप मतलब अपने सिख रिलीजन we have listened about siddhis, तो सर इस तरह दी चीजें हैं। Yes beta, but the ways are different, right? But the ways are different. Ultimately तो बेटा वो ही होता है, right? ऐसे तो बेटा सिद्ध तो यहाँ भी होते हैं, हिंदुइज्म में भी होते हैं, राइट। लेकिन बेटा ठीक है, उनका बेटा जो फलसफा और है, ठीक है, आत्मा का मतलब परमात्मा के साथ मिलान करना। तो वो मानते हैं कि एक आत्मा है और उसके बाहर मतलब कोई परमात्मा है, राइट। आत्मा ने अपने मन के परमात्मा के पास जाना है, राइट। जितनी हम गुरु नानक साहब की जो भी है, राइट, लिखते हैं, या फिर मतलब जो हमारे सूफी पोइट है ना, तो ठीक है, तो वो बेटा वो किसी मतलब गॉड की बात करते हैं, राइट। सूफीज ने बेटा जो भी लिखा है बिटवीन सोल एंड गॉड की बात की है, राइट, राइट। अपनी सोल को बेटा उन्होंने मतलब एक यू कैन से एक उन्होंने मतलब फीमेल की फॉर्म में उन्होंने प्रेजेंट किया है, राइट। और गॉड को उन्होंने मतलब किया है, ठीक है, एक उन्होंने मतलब मेल की फॉर्म में उन्होंने प्रेजेंट किया है, राइट, राइट। और वो बेटा मतलब वो सोल एंड गॉड के मिलान की बात करते हैं सूफीइज्म में, राइट। सो बेटा इट मीन्स यहाँ हिंदुइज्म एंड सिखिज्म में एक उनकी सिमिलरिटी है। हिंदुइज्म भी एक कोई एक्सटर्नल गॉड मानता है, राइट, एंड जो हमारा ये है सिखिज्म, ये भी एक एक्सटर्नल गॉड मानता है। हाँ, लेकिन एक बात सिखिज्म की जैनिज्म से मिलती है, क्योंकि हमारे गुरु नानक साहब ने बोला था कि देयर आर 33 करोड़ देवीज एंड देवतास, ऐसा कहते हैं ना निशान, है ना, कि 33 करोड़ देवी एंड देवता हैं। लेकिन बेटा आप कभी सर्च करना कि गुरु नानक देव जी के टाइम पे दुनिया की पॉपुलेशन ही 33 करोड़ थी, राइट। सो बेटा दैट इज व्हाई गुरु नानक देव जी का इशारा किस तरफ है कि एवरी
A human being is a devi or devita, देवी, yes sir. right? So वो concept है जो हमारा 33 करोड़ देवी देवता का है, right? It does not mean कि कोई 33 करोड़ कोई एक्सटर्नल फिगर्स हैं कोई, right? वो पता नहीं वो कहाँ बसती हैं, right? वो हमने 33 करोड़ देवी देवता को हमने मतलब वो करना है, राजी करना है उनको, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। सो बेटा उस टाइम दुनिया की आबादी ही लगभग इतनी थी, राइट? सो आप कभी स्टैटिस्टिक्स देखना निकाल दो। सर ब्राह्मणिज्म में तो सर फिर सिंबोलिज्म वाला कंसेप्ट भी आ जाता है ना सर कि यस यस वो विष्णु जी और लक्ष्मी माता जो है, लक्ष्मी माता को सर माया की तरह दिखाया गया है। यस तो विष्णु जी जो है वो माया को चेस नहीं करते, इसलिए माया उनकी सेवा करती है। तो यस सर यस वो वाली जो पिक्चर डिपिक्ट करती है जिसमें लक्ष्मी माता उनके पैर दबा रही होती हैं विष्णु के, तो वो यही डिपिक्ट करती है कि जो माया का पीछा करेगा, ठीक है सर, वो कर्मों की दुनिया में खो जाएगा। लेकिन माया जो माया का पीछा नहीं करेगा, माया उसको सर्व करेंगी। तो इसलिए माया विष्णु की सेवा करती है और विष्णु की नाभि से ही पूरी दुनिया निकलती है फिर। यस 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 वही मानते हैं। सो इज इट ओके बेटा यहाँ तक? This is more interesting. Yes sir. Yes. कौन सा सर एक का ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन ਚ वर्ड है जी ट्रांसथेटिक। हाँ ट्रांसथिस्टिक। ਇਹ ਮੇਰਾ नेट बंद हो गया ਸੀ, प्लीज ਇਹ वर्ड ਦੱਸੋ। ट्रांसथिस्टिक मींस ट्रांसथिस्टिक, राइट? ट्रांसथिस्टिक मींस तो वैसे तो आपको खुद ये ढूंढना चाहिए इसका मीनिंग, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ट्रांसथिस्टिक मींस के नीदर, राइट, नीदर थीस्टिक, yes sir. right, and nor we can say, right, atheistic and not atheistic, Yes sir. right? ये है इसका। Okay sir. ये गॉड को मानते भी हैं और नहीं भी मानते, दोनों चीजें। सर मेरा क्वेश्चन है एक। यस बेटा। सर जैसे कि सर हमने 8 कर्म पढ़े जैनिज्म, तो सर वो सारे के सारे नेगेटिव हैं, हमें उनसे लिबरेट होना है। यस। उन्हें डिस्ट्रॉय करना है। तो सर जैसे कि इस कोई प्राणी सर इस बार फीमेल बन के आया है और सर उसे नेक्स्ट टाइम मेल बनना है, तो सर ब्राह्मणिज्म कहता है कि 3 तरह के कर्म होते हैं, एक सत्व, एक तमस और एक राजस। सत्व कहीं ना कहीं पॉजिटिव है और राजस जो है वो न्यूट्रल है और तामस जो है वो नेगेटिव है। और सर वो कहता है ब्राह्मणिज्म की कर्म कैन बी जनरेटेड ओनली इन द स्टेज इन विच वी आर ह्यूमन, मतलब ह्यूमन की स्टेज में सिर्फ कर्म जनरेट हो सकते हैं, बाकी स्टेज में सिर्फ कर्म जो है नेगेटिव कर्म वो खत्म किए जा सकते हैं। तो सर वो ये कहता है कि अगर हम किसी स्टेज में हैं तो अगर वहां से जैसे सर सपोज इस बार कोई प्राणी सर कोई जानवर बन के आया है, तो अगर वो सत्व तो जनरेट कर ही नहीं सकता क्योंकि वो जानवर है, तो बस वो क्या कर सकता है सर, वो तमस को खत्म कर सकता है। तो जैसे जैसे उसका तमस खत्म होगा तो सर फिर वो अगले जन्म में इंसान बन के आएगा। फिर वो इंसान बनेगा, क्योंकि सर इंसान बनाया तो इंसान में तो सर कर्म भी जनरेट हो जाएंगे। तो कर्म जब जनरेट करेगा वो तो सर फिर सत्व जनरेट करेगा और फिर वो हायर पेडिस्टल पे जाएगा सर, जिसे बोलते हैं देव। तो सर यहाँ पे मतलब कि एक तरीका है जिससे एक उससे दूसरे उसमें जा रहे हैं। तो सर जैनिज्म में सर अगर जैसे कोई फीमेल बन के आया इस बार, उसे मेल बनना है, तो सर फिर वो कैसे बनेगा सर? उसको अपने नेगेटिव कर्म कम करने होंगे ऑब्वियसली बेटा। ओके सर, मतलब यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव कर्म वाला कंसेप्ट चलता है। यस 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 वही। ओके सर, ये डाउट यहाँ पे बस एक ही है, बस के सोल को लिबरेट करना है। यस सर, गॉट इट सर। मतलब एक तरह के यहाँ पे मतलब सर नेगेटिव वाली वो हो गई कर्मा, और वहाँ पे 3 तरह के होते हैं ना, पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव। यस यस। लेकिन हाँ, लेकिन बेटा इनका जो कंसेप्ट है बेटा कि हमने थ्रू द गुड डीड्स हमने अपनी सोल को प्यूरिफाई करना है, राइट? सो ये इनका मेन है। सो बेटा नाउ बेटा हमने जो अरिहंत बोला था, अरिहंत कौन है? जिन्होंने फर्स्ट 4 कर्म्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो कौन है? वो है अरिहंत, राइट? सो अब बेटा जो बेटा अरिहंत है, राइट, सो अरिहंत्स को बेटा हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन कैटेगरी इज नोन एज, राइट, वी कैन से दैट तीर्थंकर्स, राइट, तीर्थंकर्स।
तीर्थंकर है कैटेगरी। और इसकी जो बेटा दूसरी कैटेगरी है राइट, उनको हम बोलते हैं बेटा केवलीज, KEVALI, केवलीज राइट, केवलीज। सो बेटा इट मीन्स अरिहंत कौन है? वो पर्सन है जिसने अपने फर्स्ट 4 कर्म्स को डिस्ट्रॉय कर लिया है, अपनी सोल को प्योर कर लिया है राइट। उसने बेटा उसने नॉलेज गेन कर ली है। इज इट ओके ना राइट? उसने बेटा नॉलेज उसने नॉलेज विजन राइट, उसने ये चीजें गेन कर ली है राइट। सो आप बेटा इनमें से बेटा 2 किस्म के लोग होंगे। एक तो बेटा वो लोग होंगे राइट who will start following the we can say right, those people who will start following the we can say monastic order after this right, who will start following the fourfold we can say right monastic order। एक तो वो होंगे जिसने फोरफोल्ड मोनेस्टिक ऑर्डर को फॉलो करना शुरू कर दिया राइट। मीन्स वो लोग कौन है? ये बेटा वो लोग हैं जो लोग मॉन्क्स बन गए राइट, मॉन्क्स बन गए राइट, या नन्स बन गए राइट। मॉन्क्स हैं, नन्स हैं, नन्स हैं राइट, नन्स बन गए। या बेटा जो लोग राइट श्रावक बन गए। श्रावक कौन है? मेल जो है लेमैन राइट, जो के इधर यू कैन से मोनेस्टिक ऑर्डर में चले गए राइट। सो श्रावक मीन्स दोज हु सर्व राइट, श्रावक्स बन गए। और बेटा श्राविकास बन गए। श्राविकास फीमेल्स के लिए है और श्राविक है यू कैन से मेल्स के लिए राइट, श्राविकास राइट। सो बेटा यहाँ अब इम्पोर्टेंट बात क्या है बेटा कि बेटा ये जो 2 किस्म के लोग हैं बेटा, ये दोनों किस्म के लोग हैं जो दीज आर द बेटा फॉलोअर्स राइट, लेमैन फॉलोअर्स हैं। एंड दे यू कैन से दे हैव एंटर्ड इनटू द मोनेस्टिक ऑर्डर but they are not monks or nuns right, they are serving right, तो वो सिर्फ सर्व करते हैं ये लोग हैं राइट। और बेटा जो बेटा ये लोग हैं राइट, ये लोग बेटा प्रीच करते हैं इसको राइट, ये लोग इसको प्रीच करते हैं राइट। सो दीज आर द प्रीचर्स right, we can say these are the persons who are the preachers right, ascetic we can say right। ये वो लोग हैं जो फर्दर तपस्या करने चले गए। अब इन्होंने अपनी बॉडी वाले 4 कर्म करने हैं, ये वो लोग हैं राइट। लिबरेशन का दौर शुरू है अब इनका राइट। सो और बेटा दूसरी किस्म के वो लोग हैं बेटा who does not enter into the monastic order, यहाँ तक अचीव करके फिर वो अपने काम में लग जाते हैं राइट, who do not enter into the monastic order राइट। सो बेटा यहाँ फिर ये चीज इंपॉर्टेंट है आपको जाननी कि ये जो अरिहंत्स हैं ये फिर फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। एक वो लोग हैं जो मोनेस्टिक ऑर्डर में चले गए, एक जो मोनेस्टिक ऑर्डर में नहीं चले गए। जो लोग मोनेस्टिक ऑर्डर में चले गए उनको हम तीर्थंकर कहते हैं, जो लोग मोनेस्टिक ऑर्डर में नहीं गए उनको हम केवलीज कहते हैं। इज इट ओके बेटा? Yes, sir. ओके। सो नाउ बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए, which of the following Hindu texts, right, which of the following Hindu texts, right, establishes we can say Rishabdev, right, establishes Rishabdev as founder of Jainism, So this is very important question according to my you can say जितनी मेरी wisdom है उसके according, right?
ये इतनी समझ है मेरी. So one is we can say Yajurved, right? Yajurved. And the second option I'm giving you, that is beta, you can say Bhagavad, right? You can say Bhagavad Puran, right? And third option I'm giving you here, that is beta, you can say Satpat Brahmana, Satpat Brahmana, right? And the next beta D choice here is, that is, you can say Brahma Sutra. Brahma Sutra. Any idea? If you have any idea, tell me. सर यजुर्वेदा. Okay. नहीं बेटा, ये जो आपका जो भगवत पुराण है ना बेटा, इसमें जाके बात की गई है कि ऋषभ देव इज द फाउंडर ऑफ द चाइनीज. ओके सर. राइट. सो ये आपका करेक्ट आंसर है. राइट. सो इट मीन्स हिंदुइज्म ने इस चीज को माना है कि एस्टेब्लिश किया है कि ऋषभ देव इज द फाउंडर ऑफ चाइनीज. ओके, इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट? राइट. Yes, sir. यस Okay. सर. Okay. Yes, sir. ओके. सो अब बेटा, अब हम इसके आगे मूव करते हैं. इसको इसके बाद फिर हम कुछ और देखेंगे. सो अब हम यहाँ पे पहुँचते हैं. अब बेटा इनका बेटा एक ना ऑर्डर होता है. अब मैं वो ऑर्डर की बात करता हूँ. राइट. इनके ऑर्डर में बेटा सबसे पहले हम लेते हैं बेटा, यू कैन से, राइट. सो सामंत, SAMANG. पहले भी हमने बात की है ना इसकी. सामान कौन होते हैं? जो मॉन्क होते हैं, मॉन्क्स एंड नन्स, राइट. उन लोगों को हम कहते हैं. सो जो बेटा ये लोग होते हैं जिनको हम बेटा सामान बोलते हैं, राइट. सो दीज आर द पर्सन्स जिनको हम सामान बोलते हैं. सो बेटा जिनको हम सामान बोलते हैं ये कौन होते हैं? फर्स्ट ऑफ तो सामान बिलीव इन दोज जो प्रचार करते हैं एंड बिलीव्स इन इक्वालिटी एंड नॉन वायलेंस, राइट. जो उनकी प्रचार करते हैं, राइट, एस्थेटिक जीवन में चले जाते हैं, इक्वालिटी एंड नॉन वायलेंस को मानते हैं, उसका प्रचार करते हैं, उनको हम सामान बोलते हैं, राइट. एंड नेक्स्ट थिंग इज बेटा, दैट इज द अरहत, ARHAT, अरहत. सो नाउ बेटा ये जो अरहत हैं ये कौन होते हैं? राइट. वन हु लिव्स वर्चुअस लाइफ, वन हु लिव्स वर्चुअस लाइफ. वो लोग जिन्होंने वर्चुअस लाइफ जीने स्टार्ट कर दी है, राइट. वर्चुअस लाइफ वो लोग होते हैं those who have started living the virtuous life, right. So ये वो लोग होते हैं. And the next is बेटा, the next is we can say there, right. So अरहत के बाद बेटा जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, that is तीर्थंकर, राइट. तीर्थंकर, इनका ऑर्डर आपको बता रहा हूँ, that is तीर्थंकर. So as far as this Tirthankar is concerned, so Tirthankar is one who originates the originates the spiritual path, right? Originates the spiritual path. Who originates the spiritual path of liberation. Samangs are the common man. Right, they are not the preachers. Sorry, I have told you wrongly. Right, so one who originates the spiritual path of liberation, right, and establishes the fourfold path, and establishes the fourfold path. You can say our fourfold religious order. That is better.
fourfold religious order which I have told you earlier. So ये तीर्थंकर होता है, and तीर्थंकर के बाद आता है बेटा इनमें, right? So there comes, that is we can say, then comes the right अरिहंत. अरिहंत एक इनका है, वैसे ये कोई ऑर्डर नहीं है क्योंकि इसमें डिफरेंट आ रहा है, राइट. सो एज फार एज दिस इज कंसर्न बेटा अरिहंत, अगर मैं अरिहंत की बात करता हूँ तो इसमें क्या है बेटा कि वन, राइट, वन हु destroys is, right, one who destroys is, we can say, inner enemies, right? Inner enemies, right? The inner enemies are anger, right? Anger, greed, passion, ego, etc. वो अरिहंत है, right? So the next is there. अरिहंत के बाद है बेटा, that is निर्ग्रंथ. निर्ग्रंथ. So as far as this निर्ग्रंथ is concerned, so we'll say that, right, so निर्ग्रंथ is one who is detached or free, right, free from passions. जो पर्सन पैशंस से फ्री है उसको हम निर्ग्रंथ बोलते हैं. And the next is, the last is, that is beta Jina. There is Jina, right? Jina is one who has conquered all his desires, right? Is one who has conquered, all his desires, right? All his desires. So अब वो last stage पे चला गया, right? upper stage पे चला गया. So this is the, so इनके ये different है, right? status है, सामांग, अरहत, तीर्थंकर, अरिहंत, निर्ग्रंथ, जिना, right? So monks हैं, चलते फिरते हैं, सच्चाई की खोज में हैं, राइट. अभी शिक्षक हैं, सीख रहे हैं, राइट. इक्वालिटी एंड नॉन वायलेंस की धर्म को निभा रहे हैं, राइट. अरहत है, वर्चुअस लाइफ जी रहे हैं. तीर्थंकर हैं जिन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर दी है, तो वो मोनेस्टिक ऑर्डर में चले गए हैं. और अरिहंत हैं जिन्होंने अपने इनर एनिमीज हैं जो उनके ऊपर काबू कर लिया है. निर्ग्रंथ है जिन्होंने अपने पैशंस को कंट्रोल कर लिया है. और जीना जिसने अपने सभी डिजायर्स को कंक्वायर कर लिया है, उनको जीना कहते हैं. इज इट ओके? Yes, sir. ओके. Yes, sir. Sir, whom do you tell about the common man? This common man. बेटा कॉमन मैन्स आर, यू कैन से केवली, KEVALI, राइट. केवलीज आर कॉमन मैन, राइट. जिन्होंने कॉमन मैन, तो बेटा हम भी कॉमन मैन हैं, राइट. लेकिन बेटा कॉमन मैन के बाद मतलब के बेटा अरिहंत बनता है ना, जब वो अपने 4 कर्म डिस्ट्रॉय करता है, राइट. और बेटा वो बेटा अरिहंत में से बेटा फिर आगे 2 किस्म के लोग होते हैं. एक जो मोनेस्टिक ऑर्डर फॉलो करने लगते हैं, और दूसरे जो मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद, राइट, जो मतलब मोनेस्टिक ऑर्डर को नहीं प्राप्त मतलब को नहीं फॉलो करते, राइट. सो राइट, जैसे आपने मतलब ज्ञान ऑब्टेन कर लिया, राइट, और ज्ञान प्राप्ति के बाद, राइट, अरिहंत का स्टेटस अचीव करने के बाद, राइट, आप अपने मतलब घर में बैठे हो, राइट, आप अपना कामकाज कर रहे हो, सो फिर आपको मतलब केवली कहा जाएगा, राइट. और दूसरे वो हैं जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद, राइट, अब अपने वो जो लास्ट 4 कर्म्स को मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल पड़े हैं, समझे ना. सो ये है, राइट. Yes, sir, it means the common man is only Kevali. Kevali is No, the no, no, only no. common man.
Others yes. are more. No, beta. Kevalis are those. Others are related. Kevali is the common man एक minute. which has destroyed Des- 4 karmas, Yes, right. but Kevali not is joined the right. monastic order. See, beta. Yes, others. Beta, you are getting confused yourself, ना? See, बेटा आपकी फर्स्ट स्टेज, सबसे पहले तो बेटा ये कॉमन मैन है, सभी कॉमन मैन है, मैं भी कॉमन मैन हूं, आप भी कॉमन मैन हो, वी आर ऑल कॉमन मैन, राइट। कॉमन मैन होने के बाद बेटा किसी ने, राइट, हमारे बीच में से किसी ने बेटा क्या किया, हमारे बीच में से किसी ने अपने फर्स्ट 4 कर्म जो हैं तो वो डिस्ट्रॉय कर लिए, राइट। फर्स्ट 4 कर्म्स, यू हैव डिस्ट्रॉयड योर फर्स्ट 4 कर्म्स, राइट। जब आपके बेटा ये फर्स्ट 4 कर्म आप ओवरकम कर लेते हो, जब आप इनको डिस्ट्रॉय कर लेते हो, राइट, तो बेटा फिर आप बनते हो अरिहंत, समझे ना, फिर आप अरिहंत बनते हो, राइट। यहां जाके आप बने बेटा, क्या बने आप, अरिहंत, राइट। सो अब बेटा क्या होगा, अब आप अरिहंत बने, राइट। सो अब क्या है बेटा, आफ्टर ऑब्टेनिंग दिस स्टेटस ऑफ यू कैन से अरिहंत, राइट। अब बेटा आपके पास चॉइस है, राइट, या तो आप अपने जो लास्ट 4 कर्म है, राइट, आप उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल जाओ, राइट, ये तो आपकी चॉइस है बेटा, राइट। सो आप चले गए फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ लास्ट 4 कर्म्स की डिस्ट्रक्शन के लिए आप चले गए, राइट। मैं यहाँ डिस्ट्रक्शन भी लिख देता हूँ, आप बेटा उसके लिए चले गए, राइट। या बेटा आपने सोचा कि बस ये फर्स्ट 4 कर्म हो गए, राइट, बस दैट इज एनफ, राइट, मुझे अभी जो दूसरे जो पेंडिंग जो है 4 कर्म्स, राइट, अभी मैंने उनके लिए कुछ नहीं करना, ओके, राइट। सो यू डोंट गो फॉर, राइट, don't go for destruction of last 4 कर्म्स, right, last 4 कर्म्स, आप वहां नहीं जाते, आप उनकी डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं जा रहे, राइट, आपने फर्स्ट 4 डिस्ट्रॉय करके बैठ गए, ओके। सो बेटा अब क्या है बेटा, जो बेटा ये लोग हैं, राइट, जो अपने लास्ट 4 कर्म डिस्ट्रक्शन की डिस्ट्रक्शन के लिए निकल पड़े हैं बेटा, ये लोग हैं तीर्थंकर, राइट, ये लोग हैं तीर्थंकर्स, राइट। और बेटा जो लोग ये हैं जिन्होंने बेटा अपने बस ये करके बैठ गए हैं, राइट, और बेटा ये लोग हैं हमारे केवलीस, ये केवलीस हैं, ये कैटेगरी बन जाती है केवलीस, राइट, दीज आर कॉल्ड द केवलीस, इज इट ओके, राइट, दीज आर केवलीस, राइट। सो अब सर right? मेरा मतलब यही था कि बाकी So, सब तो इनके ऊपर के हैं, इनके ऊपर केवली इज एट द लोएस्ट लेवल ऑफ दिस, बेटा, केवली इज द लोएस्ट लेवल, बेटा सोसाइटी में लोएस्ट लेवल में तो कॉमन मैन बैठा है, हम लोग बैठे हैं, है ना, हाँ जी, सोसाइटी में तो ये बैठा ना नीचे, जैनिज्म आई एम सेइंग, बेटा जैनिज्म में भी बेटा आप मान लो आप फॉलो कर रहे हो जैनिज्म को, ठीक है ना, लेकिन बेटा अभी तक आपने अपने मतलब 4 कर्म डिस्ट्रॉय नहीं किए, ठीक है, आपने उनमें से 1 कर लिया, 0 कर लिया, 2 कर लिए, हाँ, लेकिन नीचे तो तो फिर कॉमन तो मैन ही रहेगा, नीचे तो कॉमन मैन ही रहेगा, ऑब्वियसली वही तो बात है, राइट। तो बेटा ठीक है, हाँ, तो यस लेट मी क्लियर इट फर्दर। और बेटा अब क्या है बेटा, इनमें से बेटा, राइट, सम बिकम्स, राइट, अनसक्सेसफुल इन डिस्ट्रॉइंग देयर 4 कर्म्स, राइट, कुछ लोग अनसक्सेसफुल रहे, वो अपने 4 कर्म डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, राइट, उनसे 4 कर्म डिस्ट्रॉय नहीं हो पाए अपने, राइट, भले उन्होंने तीर्थंकर वाला पाथ फॉलो किया, जरूरी नहीं होता कि सभी लोग कर जाए, राइट, और सम पीपल रिमेन सक्सेसफुल, राइट, उन्होंने अपना वो जो 4 कर्म थे लास्ट वाले, उन्होंने बेटा उनको भी डिस्ट्रॉय कर लिया। सो अब क्या होगा, जब आप उन चीजों को ओवरकम बेटा कर गए,
तो फिर क्या होगा बेटा, फिर these लोग these people become siddhas, right? These people become siddhas and they will be liberated from the cycle of birth and death, right? So बेटा सबसे पहली बात आपको अपने मन से ये बात निकालनी पड़ेगी कि सभी के सभी कॉमन मैन जो जैनिज्म फॉलो करते हैं वो बेटा अरिहंत नहीं बन जाते, राइट? और सभी के सभी अरिहंत बेटा तीर्थंकर नहीं बनते, और सभी के सभी तीर्थंकर मतलब सिद्ध नहीं बनते, राइट? सो अगर आपके माइंड में ये बेसिक अजम्पशन है, गॉड सर नाउ यस ये होता। सो इज इट क्लियर भाई टू एवरीबॉडी? यस सर, थैंक यू सर, नाउ गॉड सर। ओके, सो ये तो हमारा हो गया है इसका, राइट? अभी तक जो हमने किया है, दिस इज अबाउट दिस